Okay, so let's move into the secondary ports of ATT1. Let's see. Tables gives the data for calculating times and heights of tides at the secondary ports. So primarily we shall learn the use of information given in part 2 of the tide tables in conjunction with the information in part 1, which we have already learned to use when we covered the calculations at the standard ports. Times of high water and low water are obtained by applying time difference tabulated in part 2 to the daily predictions for the most suitable port referred to as the standard port. Now, the standard port in context to a secondary port in question need not necessarily be the closest port geographically located. It is a port whose tidal behavior is similar to the secondary port in question. Standard port to be used is the one which appears in bold at the head of the subsection in part 2. When we discuss part 2 page, then this issue shall be highlighted as to what is meant by the head of the subsection. The other standard ports may occur within a subsection in their correct geographical sequence, but the data for these are not shown out there. What it means is because in ports in part 2 of the tide tables are in the ascending order of the number assigned to the ports in the tide tables. So if there is a standard port whose number figures in that particular page, it will appear out there. But just because it appears at its right place does not make it a standard port, necessarily make it as a standard port for the secondary port in question. The standard port for that secondary port shall be the one which shall be at the head of the subsection. Difference in time zones and chart datum is automatically taken care of. It means that if there is any zone difference, time difference between the secondary port and the standard port, then the time difference obtained from part 2 and applied to the predictions of the standard port shall automatically take care of the time difference or the zone difference between the secondary and the standard port. Likewise, if there is any difference in the chart datum of the secondary port and the standard port, the height differences which are given will automatically account for any difference in the chart datum. Okay. Now, beta, these points which you see here will become clear to you once we open up the tide table and refer to this data. सेकेंडरी पोर्ट का जो डाटा है जब हम इसे पिकअप करेंगे तो ये सारी चीजें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी. बट स्टिल इफ यू फील एनीथिंग इज नॉट क्लियर यू कैन आस्क मी. So second and fourth point. ओके बेटा सेकंड पॉइंट में क्या डाउट है, स्पेसिफिक डाउट? So second point समझ में नहीं आया. बिल्कुल ही समझ में नहीं आया बेटा. सर जो हाई वाटर और लो वाटर होगा वो जो हमें मिलेगा वो टाइम डिफरेंस को टैबुलेट करके मिलेगा. ओके देखो बेटा, हमें स्टैंडर्ड पोर्ट के जो टाइम्स हैं हाई वाटर और लो वाटर के वो तो डेली पेजेस में दिए रहते हैं, करेक्ट? यस सर. हमें हर एक मंथ के नीचे हर एक डे में हाई वाटर और लो वाटर का टाइम भी और हाइट भी ये मिल जाता है. नाउ सेकेंडरी पोर्ट का जब हमें टाइम निकालना होगा, हाई वाटर लो वाटर के टाइम्स जब हमें निकालने होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टाइम डिफरेंसेस को अप्लाई करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू, अगर कोई सेकेंडरी पोर्ट है, आपने उसका डाटा देखा, वहां पे उन्होंने टाइम डिफरेंस दे रखा है +2 आवर्स. तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्टैंडर्ड पोर्ट है उसके टाइम में अगर 2 घंटे ऐड कर देंगे तो हमें सेकेंडरी पोर्ट के टाइम्स मिल जाएंगे. अगर स्टैंडर्ड पोर्ट पे 9 बजे हाइट ऑफ टाइड था तो यहाँ पे 9 + 2 1100 आवर्स पे हाई वाटर होगा. दैट इज द मीनिंग. अब इसको एक्चुअली कैसे करते हैं, व्हेन वी गो टू दैट टेबल आई विल शो यू. वी विल अप्लाई दीज डिफरेंसेस.
यस सर। ओके। और बेटा नंबर 4 में भी डाउट था तुम्हें? यस सर। ओके। अब बेटा ये चीज जब मैं आपको डाटा दिखाऊंगा ना सेकेंडरी पोर्ट का, तो वहां पे क्लियर हो जाएगी। अ, जो भी हम सेकेंडरी पोर्ट की इंफॉर्मेशन निकालने वाले हैं, उसी पोर्ट के ऊपर बोल्ड लेटर्स में उसकी स्टैंडर्ड पोर्ट लिखी होती है। हमें उसी पोर्ट का डाटा यूज करके सेकेंडरी पोर्ट का आंसर निकालना होता है। ऐसा पॉसिबल है कि नॉन बोल्ड लेटर में और भी कुछ स्टैंडर्ड पोर्ट वहां पे आ जाए, उनको पिक नहीं करना है। हमें सिर्फ बोल्ड लेटर, थिक वाले लेटर में जो स्टैंडर्ड पोर्ट होगी उसी का डाटा पिक करना है। सो जब आप ये टेबल देखोगे, टेबल में सेकेंडरी पोर्ट का डाटा देखोगे, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। सर बोल्ड लेटर्स में तो हमारे स्टैंडर्ड पोर्ट्स रहेंगे, और जो उनके नीचे जो मतलब जो बोल्ड वाले नहीं होंगे वो हमारे सारे सेकेंडरी पोर्ट्स है। बेटा जो नॉन बोल्ड वाले पोर्ट्स है ना, ऐसा पॉसिबल है कि उनमें कोई और स्टैंडर्ड पोर्ट में आ जाए। जरूरी नहीं है हर बार होगा ही, पर किसी जगह पे आ भी सकता है। ओके सर। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। Okay, let's proceed ahead. We will see all these points when we go to the picking up of the data from the table. Difference in the chart datum. The time difference between the times of tides between secondary port and its standard port in part 2 of the tide tables are given in hours and minutes, and include the variance, if any, between the time zones of secondary and the standard port, which we have just said that the time difference shall automatically account for any zone difference in the time of standard port and the secondary port. Thus, when the time difference between the secondary and standard port tides is applied to the predictions of the standard port, it shall give us the time of the high and low water at the secondary port in the standard time that is being kept at the secondary port. Likewise, the height difference in part 2 of the tide tables are given in meters, include the variance, if any, between the chart datum of the secondary port and the standard port, and thus, when applied the height at the standard port, this height difference that is applied will automatically take care of the chart datum difference and shall give the height at the secondary port with respect to the chart datum of the secondary port. Okay, just go through these points better slowly, one by one. Let us understand what all we have discussed so far by taking an example. And this example has been taken from past MMD examination for second mates. It is a January 2019 question. Find the tidal predictions for Fiddler Ferry Wharf, ATT Volume 1, number 456A on 13th February 1992. Okay, so beta, please open your notebooks. Just note down. So on reading the question, we go to the geographical index for ATT Volume 1. And when we go to the geographical index of ATT Volume 1, which is alphabetically arranged, we reach this Fiddler's Ferry Wharf, and we see it here, Fiddler's Ferry Wharf. And against the Fiddler Ferry Wharf here, you can see there is a number, and this number is the port number as far as tide tables are concerned. And since Fiddler Ferry Wharf is not in capitals and bold, so it's a secondary port. So Fiddler Ferry Wharf, whose number happens to be 456 alpha, is found to be a secondary port. ओके बेटा, ज्योग्राफिकल इंडेक्स में आप चले जाओ एंड फाइंड आउट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको फिडलर्स फेरी मिल जाएगा. सो इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू फाइंड इट, लेट मी नो बेटा.
सर यहाँ तक ये जोग्राफिकल वाले में तो मिल गया, लेकिन इसके पीछे जब चेक कर रहा हूँ तो ये पीछे ATT वॉल्यूम 1 में नहीं, ATT वॉल्यूम 2 में शायद पेज नंबर होगा इसका। ओके, होल्ड ऑन बेटा, अप टू हियर इज ओके ना? यस सर। हाँ, बस अभी चलते हैं बेटा आगे, धीरे धीरे सब चीजें मिल जाएंगी, डोंट वरी। So we have this Fiddler's Ferry given as a secondary port because it is not in bold. So we proceed ahead from here. ये सब मिल गया। Now we go to the appropriate page of part 2 of the tide tables. Appropriate page means the page that contains the information about Fiddler Ferry Wharf. And how do we locate it? Now the information out here is given in the ascending order of the port numbers that are assigned in the tide tables. What was the number assigned to Fiddler Ferry Wharf? It was 456A. So we can go and locate 456A because it is in the ascending order. But before we go to Fiddler Ferry Wharf, let's analyze this information on this page. Okay. So beta, everybody please look for this number 456A in ATT1 and let me know if anybody has difficulty in coming to this particular page. I think this is page number 313. Yes, sir. 313. Right, beta, right. So first you go to this page. Don't go directly to 313. You look for the number. आप नंबर को देखते देखते ही फिडलर फेरी वॉफ पे पहुंच जाओगे. So it is not given as a wharf. It is given as Fiddler's Ferry. So anybody having problem? Let me know, beta. पेज नंबर 313 हमने कैसे डिसाइड किया सर? ओके बेटा, हम 313 पे नहीं गए, हमने तो नंबर को पकड़ लिया. 456A नंबर पे हमें जाना है. अब आप ATT में जहां पे सेकेंडरी पोर्ट का डाटा दिया गया है, ओके, पार्ट 2 में दिया गया है इसका डाटा, उस डाटा में चले गए और ये नंबर शुरू से शुरू हो रहे हैं बेटा. एक्चुअल पूरा टेबल लेंगे तो नंबर 1 से शुरू होंगे ये. हम नंबर को देखते चले गए और 456A पे जाके रुक गए. यस सर, अंडरस्टूड, मिल गया सर. वेरी गुड बेटा. सो यहां से आगे चलें बेटा. यस सर. Very good. Let's proceed ahead. This page has two types of information. One is this information, which is now bound by the red box out here. This is basically the information that provides us the time and height difference data between the secondary port and the standard port. Then we have some information at the bottom of part of this page, and this is what we call as the seasonal variance or seasonal correction. Now, in this page, we locate Fiddler Ferry Wharf. It is here that the Fiddler Ferry Wharf is here in the ascending order of the port numbers. Now, we go to the top of the subsection. Now, this is where I would like to draw your attention. When we go to the top, start going upwards from here, we reach this where we find Liverpool listed here. Liverpool is listed here because Liverpool's, the port number as per tide tables is concerned, as per the ascending order, the Liverpool figures here, but the information about Liverpool is not captured here. So just because Liverpool is the first standard port which I hit when I started moving upwards from Fiddler Ferry Wharf, does not make, I repeat, does not make Liverpool its standard port. I go to the top of the subsection, and what I find again at the top of the subsection is Liverpool with all the data captured out here. Now, Liverpool, because it is at the top or head of the subsection where Fiddler Ferry Wharf figures, it is because of this Liverpool becomes the standard port for Fiddler Ferry Wharf, and it does not become a standard port because it figured somewhere here also. So please be very, very clear about it. Okay.
सो बेटा ये जो पेज है इसमें सबसे पहले तो जो ये रेड कलर का डाटा बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है ये डाटा है टाइम एंड हाइट डिफरेंसेस। अब इसका मतलब क्या है? देखो जब हम किसी भी पोर्ट के टाइड्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें दो ही चीज़ें निकालनी होती हैं। एक हमें निकालना होता है हाई वाटर लो वाटर के टाइम्स, किस टाइम पे हाई वाटर होगा किस टाइम पे लो वाटर होगा ये निकालना होता है। और दूसरी चीज़ हमें निकालनी होती है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टाइड एट हाई वाटर, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ टाइड एट लो वाटर। यही दोनों चीज़ें हमें टाइड टेबल्स में दी होती हैं, इन्हीं को हम कैलकुलेट करते हैं सेकेंडरी पोर्ट के लिए। वन टाइम, दूसरा हाइट। ओके, अप टू हियर क्लियर? यस सर। वेरी गुड। यस सर। अब हमें बेटा सेकेंडरी पोर्ट के टाइम और हाइट निकालने हैं। हमारे पास अवेलेबल क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड पोर्ट के टाइम और हाइट अवेलेबल है। इस टेबल में उन्होंने हमें ये बताया है कि स्टैंडर्ड पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, और स्टैंडर्ड पोर्ट और सेकेंडरी पोर्ट के बीच में जो हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, ये उन्होंने हमें यहाँ इस टेबल में बता दिया है। अब अगर हमें ये डिफरेंस यहाँ से मिल जाए, इस डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड पोर्ट पे अप्लाई कर दें तो हमें सेकेंडरी पोर्ट के टाइम और हाइट ये दोनों मिल जाएंगे। इन्हें अप्लाई कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे, इट इज नॉट सो सिंपल। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, पर अभी हमने ये सीख लिया है कि हमें ये हाइट और टाइम डिफरेंस पार्ट 2 में यहाँ से इस पेज से मिल जाएंगे। सर ये क्या मीनिंग था जो इसमें बोल रहा था कि लिवरपूल इसका प्राइमरी मैं पोर्ट बताता नहीं हूँ है? बेटा, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ इसका मीनिंग भी बताता हूँ। आप जब इस पार्ट 2 में गए आपने अपनी पोर्ट यहाँ पे देखी, फिडलर्स फेरी पोर्ट यहाँ पे आ गई। यस अब सर। आपने इस पोर्ट के ऊपर जाना है और ठीक है। ऊपर जाके आपने देखना है कि इसके ऊपर स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी आ रही है। ओके, मैंने आपको ये बताया है कि ये सारी की सारी पोर्ट अपने नंबर के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग फर्दर, ये नंबर के हिसाब से सारी पोर्ट यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फिडलर फेरी से पहले कोई स्टैंडर्ड पोर्ट यहाँ पे आ गई कि लिवरपूल की जगह पे कुछ और भी हो सकती थी, लेट अस से ये डोवर भी हो सकती थी। जस्ट टू मेक इट क्लियर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे डोवर पोर्ट आ गई, हो सकता है डोवर का नंबर 452 होता तो वो यहाँ पे आ जाती। करेक्ट बेटा? यस सर। अब अगर वो नंबर के हिसाब से फिडलर फेरी के ऊपर आ गई है, दैट डज नॉट मीन कि वो फिडलर फेरी की स्टैंडर्ड पोर्ट है, दैट डज नॉट मीन दैट। इन्होंने तो नंबर में सारी पोर्ट को लिखना था, इसलिए यहाँ पे डोवर को भी लिख दिया। हमें स्टैंडर्ड पोर्ट कौन सी लेनी है? फिडलर फेरी के ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे जो स्टैंडर्ड पोर्ट दे रखी है, देखो इसके साथ उन्होंने सारा डाटा भी दे रखा है। उन्होंने यहाँ पे आपको हाई वाटर टाइम दे रखे हैं 00 एंड 1200, 6 एंड 1800। फिर यहाँ पे लो वाटर के भी टाइम दे रखे हैं 0200 टू 1400, 0700 एंड 1900। फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने कुछ हाइट्स भी आपको दे रखी हैं 9.3, 7.4, 2.9, 0.9, राइट? यस सर। जो सीरियल ऑर्डर में यहाँ पे आ रही थी लिवरपूल, वहां उन्होंने डाटा नहीं दिया। सो हमें वो वाली स्टैंडर्ड पोर्ट को पिक करना है जिसका डाटा आपको यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट। बीच में अगर कोई स्टैंडर्ड पोर्ट आती है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बीच वाली पोर्ट में चले गए, आपको डाटा नहीं मिला, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसकी स्टैंडर्ड पोर्ट का डाटा तो दिया ही नहीं है। सो फॉरगेट अबाउट दैट पोर्ट जिसका डाटा यहाँ पे नहीं है। आपने ऊपर जाके उस पोर्ट का डाटा पिक करना है, स्टैंडर्ड पोर्ट का जो टेबल में गिवन है। That is the standard port for this particular fiddler फेरी। अब ये क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। यस सर। सर अब आप क्वेश्चन है सर। होल्ड ऑन जस्ट वन मिनट। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर अगर उन्होंने लिवरपूल यहाँ ऊपर लिख दिया तो उसे यहाँ बीच में लिखने की क्या जरूरत थी? बीच में ना लिखते, बीच में लिखने से तो कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा बीच में इसलिए लिखा गया है क्योंकि उन्होंने ये जो नंबर की सीक्वेंस है इसे तोड़ा नहीं है। अगर वो यहाँ लिवरपूल नहीं लिखते तो 452 खाली रह जाता,
और आपको पता नहीं चलता कि 452 नंबर कहाँ गया। अब जब आप देखोगे आपको पता चलेगा 452 लिवरपूल है और ये स्टैंडर्ड पोर्ट है और हमें इसका डाटा सीधा डेली पेजेस से मिल जाएगा। बट सर ऊपर जो सर लिवरपूल लिखा हुआ वहां पे भी सर 452 मेंशन है। हाँ दैट्स राइट बेटा, वहां पे जो 452 मेंशन्ड है वो सीरियल ऑर्डर में नहीं है। देखो वो 437 के भी ऊपर 452 आ गया है, वहां पे 452 लिवरपूल मेंशन्ड है एज ए स्टैंडर्ड पोर्ट। नीचे में 452 लिवरपूल मेंशन्ड है बिकॉज इट केम इन द सीरियल नंबर। यस सर, यस गॉट। ओके बेटा, यस अब सर। बेटा इसमें और डाउट क्या आ रहे हैं? सर अगर मेरा नंबर होता 475A फोर्ट बैलन के लिए, तो उसके लिए मेरा जो स्टैंडर्ड पोर्ट होगा वो होली हेड होगा या लिवरपूल होगा सर? 475A बेटा। सबसे लास्ट वाला है सर इस पेज में। अच्छा ओके, जो रेड लाइन के पीछे दिखाई दे रहा है, राइट, यहाँ पे। यस सर। ओके, अब बेटा आप ऊपर आए, जब आप ऊपर आए आपने देखा यहाँ 478 पे होली हेड लिखा है, आगे उसका डाटा भी लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक सॉलिड लाइन भी है, करेक्ट। सो ये सॉलिड लाइन का मतलब है Yes, कि sir. यहाँ से आगे सेक्शन बदल गया है और आगे वाली पोर्ट के लिए स्टैंडर्ड पोर्ट होली हेड की आ गई है। इफ यू सी क्लियरली, होली हेड का जो नंबर 478 है, इज इट राइट बेटा, इज इट 478? यस सर। ये सीक्वेंस में नहीं आ रहा, 471 के बाद 478 है और 471A है, करेक्ट। सो दिस 478 होली हेड गिवन हियर इज ए स्टैंडर्ड पोर्ट, इसका डाटा भी लिखा हुआ है। अब अगर अगले पेज पे आप जाओगे, आई डोंट नो वेदर दैट इज इंक्लूडेड और नॉट, आप देखोगे होली हेड एक बार फिर से आएगा। इज द नेक्स्ट पेज इंक्लूडेड इन अवर टेबल बेटा? जस्ट सी। नो सर, होली हेड नहीं है सर उसमें। ओके ओके, सो अगर वो दूसरा पेज भी होता तो इट इज पॉसिबल कि 478 पे होली हेड दोबारा भी हमें वहां पे दे देते, वहां पे हमें ये डाटा नहीं मिलता। ओके, सो यस सर। इस पोर्ट के लिए जो आप बात कर रहे हो 475A, आई थिंक यू आर टेलिंग, उसके लिए होली हेड ही हमारी स्टैंडर्ड पोर्ट होगी। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, और ये जो सॉलिड लाइन बना रखी है बेटा, सॉलिड लाइन यहाँ पे इन्होंने एक बना रखी है, ये सॉलिड लाइन का मतलब है कि ये सब सेक्शन चेंज हो गया है, ऊपर वाला सब सेक्शन अलग था, नीचे वाला सब सेक्शन अलग है, राइट। देखो हमने लेफ्ट साइड में भी लिखा है, गो टू द टॉप ऑफ द सब सेक्शन टू आइडेंटिफाई इट्स स्टैंडर्ड पोर्ट। सो सॉलिड लाइन के बाद ये नया सब सेक्शन आ गया है और इस सब सेक्शन के टॉप पे होली हेड पोर्ट का डाटा है। So holy head is the standard port for the remaining ports given on this page. Okay, beta, clear? ओके सर। Okay. Now let me tell you a little bit about the Sir? season corrections also. बोलो बेटा। तो मैंने आंसर निकाला है, 1 मिनट बताएंगे कि सही है कि नहीं सही है मेरा? किसका आंसर निकाला है बेटा? टाइट्स का? इसी क्वेश्चन का। ओके बेटा तू रुक जा अभी बाकी लोगों को कैचअप करने दे, होल्ड ऑन। यस ओके, सर। अभी पता चल जाएगा आंसर भी, डोंट वरी। So let me go slowly बेटा, this is quite tricky and if we don't go step by step हो सकता है confusion आना शुरू हो जाए। So let me tell you now, ये जो seasonal correction है ये क्या होती है बेटा? आप देखोगे इन्होंने यहाँ पे हमें seasonal changes दी हुई हैं, आगे उन्होंने नंबर लिख रखा है, पोर्ट नंबर सो एंड सो टू सो एंड सो, फिर ये मंथ लिख रखा है ईयर का और फिर एक सीजनल करेक्शन लिख रखी है। अब बेटा सीजनल करेक्शन का क्या मतलब है? अब ये सीजनल करेक्शन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर एरिया में 394 टू 398 जो पोर्ट्स हैं, जनवरी मंथ में वहां पे सीजन की वजह से, सीजन में जैसे हम बोलते हैं मॉनसून सीजन आ गया, मॉनसून सीजन आएगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है ओवर अरेबियन सी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में विंड ब्लो करती है, साउथ वेस्ट मॉनसून, द विंड ब्लोज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब उसकी वजह से वहां के टाइड्स में फर्क आ सकता है।
सो जो ये फर्क आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ सीजनल चेंजेस। इस एरिया में जहां पे 394 टू 398 पोर्ट है, कोई ऐसा फिनोमिना हो रहा है, या तो साइक्लोन आ रहा है या विंड ब्लो कर रही है, जिसकी वजह से वहां की जो हाइट्स हैं वो 0.1 मीटर ज्यादा हो जाएंगी। जो डिफरेंस यहाँ पे दे रखे हैं उससे ज्यादा हो जाएंगी। इसको बोला जाता है सीजनल चेंजेस। इसको यूज कैसे करते हैं ये अभी आगे आपको मैं बताऊंगा। अभी के लिए आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये है क्या। सो आई होप इट इज बिकमिंग क्लियर। सर यस सर। बोलो बेटा। ये सर सर इसमें हमें बेसिकली करना ही है ना कि हमें स्टैंडर्ड पोर्ट की हाइट ऑफ टाइट पे सेकेंडरी पोर्ट की करेक्शन दी हुई है, तो सर हमें स्टैंडर्ड पोर्ट की हाइट ऑफ टाइट फॉर दैट पर्टिकुलर डे पे सेकेंडरी करेक्शन निकालनी है। दैट्स राइट बेटा। उसी का मेथड सर अभी आप एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स राइट बेटा, दैट्स राइट। हम लोग करेक्शन निकालेंगे टाइम के लिए भी और हाइट के लिए भी, उसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास सेकेंडरी पोर्ट की डिटेल्स आ जाएंगी। ओके सर। ओके ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड बेटा। अब आगे देखते हैं, हमें इस पेज के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। लेट्स गो अहेड। What do we mean by the head of the subsection? In this very page, we have these few ports out here, few secondary ports here, and for them, the head of the subsection is here. And for these secondary ports, the standard port happens to be holy head. So I hope this issue about top of the subsection is clear. For these ports out here, the top of the subsection is this one. So Liverpool is the standard port for all these secondary ports here. And for these secondary ports, it's Holyhead, which shall be the standard port. And you can see the data, full data of Holyhead also being captured here. Liverpool, what is the number of Liverpool? That is given here. It's 452. So Liverpool number 452 is the standard port for Fiddler Ferry Wharf. Now we identify on this page the data that we shall be using going forward. Of course, this data about what is captured against Liverpool would be used. Second would be the difference in time and heights for Fiddler Ferry Wharf. So this shall be the second part used. And the third thing that will be used from here would be the seasonal variance. I hope whatever time we have spent on this page puts all your doubts to rest. First, we locate the secondary port. Then we identify its standard port. Then we identify these three pieces of data which we shall be using going forward. ओके, अब बेटा इसी पेज से हमने जो चीजें पिकअप करनी है, आप जो ग्रीन टिक मार्क देख रहे हो, ये सारी चीजें हम अपनी कैलकुलेशन में यूज करने वाले हैं। सबसे ऊपर वाले बॉक्स में लिवरपूल का डाटा हमें दिखाई दे रहा है। उन्होंने हमें टाइम दे रखे हैं हाई वाटर के, लो वाटर के, फिर उन्होंने हमें हाइट्स दे रखी हैं, MHWS, MHWN, MLWN, MLWS, इनको हम यूज करेंगे। फिर अगर आप फिडलर फेरी के आगे देखोगे तो उन्होंने हमें टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, हाई वाटर और लो वाटर के नीचे टाइम डिफरेंस दे रखा है, और उन्होंने हमें आगे हाइट डिफरेंस भी दे रखे हैं, इनको भी हम यूज करेंगे। और तीसरा डाटा जो यूज होगा वो होंगी सीजनल चेंजेस। सो यू विल बी एबल टू पिक अप दिस डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेज। लेट्स मूव अहेड नाउ। So the information that we just identified for further use is captured out here again. We have zoomed in so that we have the clarity of the data. So you have Liverpool, the information which was at the top of the subsection that is captured here in the uppermost box. Then the information for Fiddler Ferry Wharf that was captured is here. And then we have the seasonal variance or seasonal changes, whatever you may like to call them. Now, what is the time zone for Fiddler Ferry Wharf? This time zone here gives you the time zone of the
tide times that you shall obtain for the secondary port. So when we apply the differences in time between Fiddler Ferry Wharf and Liverpool to the high and low water at Liverpool, we shall get the tide timings at Fiddler Ferry Wharf in its standard time, and the standard time for Fiddler Ferry Wharf is universal time or the GMT. Now, tide is required for 13 February 1992. Now, you see, here we have the time difference for high water, and here we have the time difference for the low water. We shall discuss how we use them later on, but what is significant here is this 13th February 1992 is the date at the secondary port. Now, since we have appreciable difference in the times, so this time difference may cause a change in date between the standard port and the secondary port. So sometimes, depending on this difference, whether it is plus or minus, you may have to use the data of the standard port for the preceding day also, or you may have to use the data for the following day. So बेटा ये चीज आपको समझ में आई, और you want me to repeat? Yes sir, well clear. Very good बेटा, very good. सर हाँ बोलो सर, कैन यू प्लीज जैसे हम सर डेली पेजेस पे देखते थे तो उसमें सर लोकल टाइम दिया होता है हमेशा, राइट। तो सर अभी जो इसमें जो प्राइमरी पोर्ट जो देके रखा हुआ है इसका लिवरपूल, इसका जो जीएमटी टाइम है वो मेंशन करा हुआ है प्रेजेंट टाइम में। नो बेटा नो, मैं बताता हूँ तुम्हें इसका मीनिंग क्या है। बेटा ये वाला जो सब सेक्शन है ना, लिवरपूल के नीचे जितनी भी पोर्ट्स आ रही हैं, और ये जो टाइम डिफरेंस हमें दे रखे हैं, अगर ये टाइम डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड पोर्ट पे, लिवरपूल के टाइम पे ये टाइम डिफरेंस अगर हम अप्लाई करेंगे, तो हमें फिडलर्स फेरी का जो लोकल टाइम है उसी में अपने टाइम्स मिल जाएंगे। मींस हमें और कोई करेक्शन नहीं लगानी पड़ेगी। अब जितनी भी पोर्ट लिवरपूल स्टैंडर्ड पोर्ट के नीचे आ रही हैं, इन्होंने टेबल में लिख रखी हैं, वहां पे कौन सा टाइम जोन यूज हो रहा है, EUT यूज हो रहा है, जीरो टाइम जोन, दे आर मेंटेनिंग GMT। सो जब हम ये डिफरेंसेस को अप्लाई करेंगे, जो टाइम हमें मिलेंगे वो डायरेक्टली GMT में ही होंगे। ओके, नाउ फॉर्चुनेटली लिवरपूल इज ऑल्सो इन GMT, लेकिन अगर लिवरपूल किसी और टाइम जोन में भी होता, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, लेट अस से लिवरपूल किसी और टाइम जोन में होता, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके सर। तो भी अगर हम ये डिफरेंसेस को अप्लाई करते तो डायरेक्टली हमें फिडलर्स फेरी की लोकेशन का टाइम मिल जाता, हमें और कोई करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर सपोज मुंबई हमारा स्टैंडर्ड पोर्ट है, राइट, मान लेते हैं, तो सर यहाँ पे जहाँ पे जोन टाइम GMT लिखा हुआ है तो यहाँ पे GMT प्लस 5:30 लिखा होगा। नहीं बेटा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्टैंडर्ड पोर्ट। ये जो UT GMT लिख रखा है, दिस अप्लाइज टू ऑल द सेकेंडरी पोर्ट्स कमिंग अंडर द स्टैंडर्ड पोर्ट। ये जो जोन इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये सारी की सारी सेकेंडरी पोर्ट्स को अप्लाई करता है। सारी की सारी सेकेंडरी पोर्ट ये टाइम मेंटेन करेगी, GMT। दैट्स राइट बेटा, GMT। ओके ओके। नहीं सर, मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे जो ये प्राइमरी पोर्ट में जो टाइमिंग देके रखी हुई है, राइट, और ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है GMT, राइट, तो ये टाइमिंग GMT पे है सारा? नो बेटा, नो 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 नो, आप इसको ना बड़ी आसान तरीके से समझो। मैं अभी इसको बहुत सिंपल करके आपको बता रहा हूं। जब आप ये टाइम डिफरेंसेस अप्लाई करोगे स्टैंडर्ड पोर्ट के ऊपर, कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन जैसे ही आपने ये टाइम डिफरेंस अप्लाई किए, तो जो आंसर आपको मिलेगा दैट विल बी द टाइम मेंटेन्ड एट द सेकेंडरी पोर्ट। फिडलर फेरी पे जो भी टाइम मेंटेन हो रहा है, ये टाइम डिफरेंस आपको अप्लाई करने के बाद वही टाइम बताएंगे।
ठीक है सर। तो उसमें और कोई भी करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि इसकी स्टैंडर्ड पोर्ट मुंबई होती, मुंबई। यस। अब मुंबई का टाइम जोन तो भाई -5:30 है। यस सर। ओके, सो 5:30 आवर्स हम लोग जीएमटी से दूर हैं, लेकिन फिडलर फेरी जीएमटी मेंटेन कर रही है। तो अगर Yes. हम ये डिफरेंसेस मुंबई पे लगा देंगे, जो आंसर हमें मिलेगा वो ऑटोमेटिकली जीएमटी में आ जाएगा। हमें अलग से कोई करेक्शन उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना समझ लो बेटा। ठीक है सर। ओके ओके सर। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। So it may not be a bad idea that when you go to part 1 of the tide tables to extract information about the standard port, then you can make it a practice to consider for 3 days the day in question at the secondary port, a day preceding that, and a day following that. The time difference in tides between the standard and the secondary port may cause a change in date between the standard and the secondary port. Why? You can see this time difference here. It's 5 hours, 40 minutes of time difference. Yes, it could cause a change in date. So it is better to consider the times at standard port over the dates on either side of the date in question. And obviously, as you practice more, then you can take a call whether only the preceding day should be taken into account or only the following day. Until then, you can say you will consider 3 days, the day in question, a day before that at the standard port, and a day after that. अब बेटा मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमें फिडलर फेरी पे टाइड चाहिए 13 फरवरी 1992 का। तो हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड पोर्ट पे टाइड का हाइट और टाइम जो है वो नोट करना पड़ेगा। अब हम अपनी नोटबुक में ये नोट करने के लिए चले गए। तो आप मुझे बताओ कि कौन सी डेट का टाइम और हाइट आप पिक करोगे लिवरपूल का बेटा? सर 13 Feb। सो आपने 13 फरवरी के 4 टाइम थे वहां पे, चारों नोट कर लिए। अब उनको नोट करने के बाद आपने ये करेक्शन देखी यहाँ पे। लेट अस से एक करेक्शन आ गई 0540। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, करेक्शन कैसे आती है अभी देखना है हमें। अब जो लिवरपूल का लास्ट सर टाइम दे रखा 13 था फेब उन्होंने। का जो टाइम नोट करना है सर वो नहीं समझ में आया सर। नहीं बेटा, ये सारी एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसमें समझने वाली बात ही नहीं कोई। नहीं सर, जो लिवरपूल का स्टैंडर्ड जीएमटी टाइम नोट करना है 13 फेब का नहीं वो नहीं बेटा, समझ में आया नहीं सर। नहीं 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 नहीं। आप लिवरपूल में एंटर करोगे डेली पेजेस में, और 13 फरवरी को जो वहां पे टाइम और हाइट दे रखा है उसे नोट कर लोगे। अब इसमें अच्छा कोई ओके डाउट? सर, ओके ओके सर, ओके थैंक यू सर। ओके, अब ये टाइम आपने नोट कर लिए। अब मान लो करेक्शन आ गई +540। अब मान लेते हैं लिवरपूल का जो लास्ट टाइम था वो था 2000। अब जब 2000 में आप 5 घंटे 40 मिनट ऐड करोगे तो ये तो बेटा नेक्स्ट डे में चला जाएगा ना। डेट तो बन जाएगी 14 फरवरी, इजंट इट? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है हमें लिवरपूल में 12 फरवरी की टाइड की डाटा को पिक करना पड़े, बिकॉज ऐड हो रहे हैं ना सारी करेक्शन। अगर हमने 13 फरवरी पिक की तो हो सकता है 1-2 वैल्यू 14 में चली जाए, तो हमें 12 फरवरी का डाटा भी पिक करना पड़ सकता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो अब ये बात समझ में आई बेटा? और सर डेली पेजेस मैंने खोला है सर, इसमें 13 फेब का सर खाली सर ये हाई वाटर, लो वाटर और एक और हाई वाटर दिया हुआ है, इसमें एक लो वाटर नहीं दिया हुआ है सर। बेटा जरूरी नहीं है कि एक दिन में 2 हाई और 2 लो ही हों। ऐसा पॉसिबल है कि 3 ही टाइड हो। नहीं वो तो सही बात है सर, तो सर ये हम लोग सेकंड वाला जो नेक्स्ट डे का हाई वाटर है, लो वाटर है, उसको लेंगे क्या सर? अगर बेटा आपने मुझे ये बताओ कि 13 फरवरी को लिवरपूल का लास्ट टाइड का टाइम क्या है? 1814 1814। सर। ठीक है बेटा। अब इस केस में कोई दिक्कत नहीं हो रही। अगर 1800 टाइम है, आप उसमें 5 घंटे 40 मिनट ऐड भी कर दोगे तो 2340 टाइम आता है, एंड द डेट रिमेन सेम, डेट में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर लिवरपूल का लास्ट टाइम 2000 का होता और आप उसमें 5 घंटे 40 मिनट ऐड करते, तो फिडलर फेरी का टाइड जो है वो कौन सी डेट का आता?
13th का आता या 14th का हो जाता? सर 14th का हो सर, जाता 14th सर, नेक्स्ट डे में आ जाता। राइट, सो वो 14th का हो जाता। तो हमें तो 14th का नहीं चाहिए, हमें तो 13th का ही चाहिए। तो इट इज पॉसिबल कि हमें लिवरपूल को 12 फरवरी का टाइम भी पिक करना पड़े। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड। अब क्लियर हुआ बेटा? तो मतलब सर लिवरपूल का 12 तारीख का लास्ट वाला लेते, 2329 है जो। राइट बेटा, दैट इज राइट। ओके ओके सर, सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं, ये तो सर क्लियर हो गया सर। सर क्वेश्चन ये था सर, जैसे इसमें दिया हुआ है सर 1814 लास्ट हाई वाटर टाइम है, लो वाटर टाइम नहीं दिया है सर। मान लीजिए वो 6 आवर्स मतलब 6 आवर्स आगे है सर, तो सर फिर हम लोग क्या 14th का जो हाई वाटर का टाइम है वो लेंगे सर? नहीं बेटा, उसे तो पिक करेंगे ही नहीं हम लोग, हमें वो टाइम और हाइट चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो 13 फरवरी से बाद चला जाएगा ना। वो तो 14 फरवरी में हो गई अकरेंस, 14 फरवरी अकरेंस तो हमें चाहिए ही नहीं। हमें तो सिर्फ 13 फरवरी में 0000 टू 2359 के बीच में जो भी अकरेंस हो रही है वो चाहिए। ओके सर, ओके, ठीक है सर। ओके, 14 फरवरी की हम नहीं लेंगे बेटा। ठीक है सर, ओके। ओके, हाँ, एक केस में 14 फरवरी की जरूरत पड़ सकती थी, कैसे मैं बताता हूं अभी। मान लो ये सारी की सारी करेक्शन माइनस में होती। अब ये माइनस में अगर करेक्शन होती -5 घंटे 40 मिनट, तो ऐसा पॉसिबल है कि 14 तारीख को 0100 पे अगर कोई टाइड हो रहा है, आप उसमें 5 घंटे माइनस करोगे तो फिडलर फेरी में वो टाइम जो है वो 13 तारीख की डेट में चला जाएगा ना बेटा। यस सर। सो ऐसे केस में हम लोग 14 का टाइम हो सकता है हमें लेना पड़ता, अगर ये नेगेटिव में होती करेक्शन तो। ओके, अगर यहाँ पे करेक्शन पॉजिटिव में हो तो पिछली डेट का टाइम लेना पड़ सकता है, अगर करेक्शन नेगेटिव में हो तो अगली डेट का टाइम आपको लेना पड़ सकता है। और सर ये किसी जगह करेक्शन ही ना हो और सिर्फ डॉट हो तो? मींस द करेक्शन इज नॉट गिवन और यस द सर, ओनली करेक्शन डॉट इज गिवन। ओके, उनको भी देखेंगे बेटा कि उनका क्या मीनिंग है। अभी के लिए हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं, वी विल गो टू दोज पोर्ट्स आल्सो। ओके, यस सर। okay, so beta we are almost done for our session, so